Good evening and happy Sabbath to each and every one of you. I like to welcome in this Vesper program. Start our Vesper program. Let's open our Bible. Psalms 100, chapter 100, verse 1 to 5. Shout for the joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Amen. Let's bow our head for prayer. Let's pray. Our merciful Heavenly Father, we thank you for this beautiful evening that you have given us to see, Lord, as we are coming to your feet to submit our sins to the hand, Lord. As we are sinners, we do many sins, knowingly, unknowingly. Please forgive our sins and shortcomings, Lord. We are praying for sick people, those who are sick and suffering from these viruses, be with them and help them. As whatever the medicines they are taking, bless in their medicines, Lord. At this time, we pray for the speaker, though whatever he will, whatever the message he will give us, Lord, we can keep it in our mind and share it to others, Lord. As whatever we pray, you know each and everything, Lord. In this short prayer, we are asking in Jesus' name. Amen. Once again, I like to welcome each one of you for this Vesper program. I like to welcome Dr. Melvin Bodetti, George Bubbly, Gladwin, Helena, Jeffrey, Madhuri, Meena, Preeti, Rajiv, Rashmi, Samuel, Seema, Sunny, Sushma, and and what is his name? I don't know. Vivo 1610. Okay, I welcome each one of you to proceed our program. We have a song service by Mr. Sunny Murmu and family. Thank you, Seema. Before we join into the song, we will read three verse from a chapter from Psalm 95. It says, "O come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come into his presence with thanksgiving, and let us make a joyful noise to him with songs of praise. For the Lord is a great God and a great King above all gods." भजन संहिता से 95:1-3। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। ठीक है, हम आगे चलेंगे। ये गीत गाते हैं, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, भजन गाते हुए उसकी जय जयकार करें। भजन गाते हुए उसकी जय जयकार करें।
के लिए ऊंचे स्वर से गाए अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करे क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है सारे देवताओं के ऊपर वो महान राजा है सारे देवताओं के ऊपर वो महान राजा है हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करे क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा उसके हाथ की बेटे और हम उसकी प्रजा उसके हाथ के बेटे हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए अपनी मुक्ति की जयकार करे अगला गाना गाएंगे यीशु तुम हो तारनहारे यीशु तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे महिमा तेरी करते जहाँ और करते हैं चांद सितारे यीशु तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे महिमा तेरी करते जहाँ और करते हैं चांद सितारे यीशु आराधना तेरी हम करते रहेंगे जब तक जीवन हो तेरी वचन को सुनाते रहेंगे मृत्यु भी आने दो आराधना तेरी हम करते रहेंगे जब तक जीवन हो तेरी वचन को सुनाते रहेंगे मृत्यु भी आने दो कर दो क्षमा प्यारे प्रभु कर दो क्षमा प्यारे प्रभु जितने हो पाप हमारे यीशु तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे महिमा तेरी करते जहाँ और करते हैं चांद सितारे यीशु अगला गीत है जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है खिल गई है कलियां नई यीशु बहार लाया है जिंदगी मेरी जीवन है क्या पल दो पल का किसने न जाना
दो पल का किसने न जाना होगा कल क्या। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी। मुक्ति और जीवन बुलाया है, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ को थामेगा। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ को थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने, इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। Okay, we'll sing this last song and then we'll go to opening prayer. Okay, वंदना करते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्मल मना, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्मल मना, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, हम सागर में वो खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, हम सागर में वो खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई भी। शक्ति दे दो मुझको,
जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे गीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे गीत। वंदना करते, वंदना करते, वंदना करते, वंदना करते। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं। वंदना करते, वंदना करते। I'd like to thank Mr. Sunny Murmu and family for this beautiful song service. And now we'll have a opening prayer by Mr. Marvin. All right, shall we bow our heads, close our eyes for prayer? Kind, gracious, loving Heavenly Father, Lord, thank you for this beautiful Sabbath day you have given us. Thank you, day where we could leave aside all our work and come to thy throne of grace and acknowledge you that you are our creator and we are your creature, Lord. At this time, as we have gathered here as a family to learn and especially pray for the speaker of this hour. We have Marshall as he will lead us in the message. Lord, take care of him, whatever he speaks. Lord, help it to come from the throne of grace. Help us, let your Holy Spirit be present amidst us and bless one and all and give us the Sabbath blessing. We pray for all the grieved ones, Lord, in different parts of the world and our relatives. Lord, take care of them. And those who are sick, Lord, send for the healing hands and touch them so they might be able to get well soon and glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Now we'll have a Bible quiz by Mr. Sunny Murmu. Okay, this is the quiz code. You can put your code in your apps and join in. आप सब ये कोड डाल सकते हैं अपने ऐप में और इस क्विज में भाग ले सकते हैं। आपको याद हो कि क्विज नंबर्स 31, 32 एंड 33 चैप्टर से बनाया गया है। होपफुली आप पढ़ के आए होंगे, हम आशा करते हैं। Okay, we'll start now. Numbers 31 to 33. Here's the first question. Take the sum of the prey that was taken, both of man and of beast. Who spoke these words? Okay, let's see the right. Jamie is leading now, and others are following. We're going to the second question. There are 18 questions in total. Don't worry, you can come up anytime. Be sure your sin will find you out. Who spoke these words? Very easy. Hopefully, we should get right answers for all of you. Okay, 7 of you. And 8 wrong. Indore is leading. We'll go to the next question. The third question is coming up and it has double points, so careful. Every man's inheritance shall be in the place where his lot falleth. Who spoke these words? You have much time also. Okay, 4 correct. The Lord spoke these words.
Jamie is leading now, and the scoreboard is shuffling every time. This is easy true and false question. Fourth question: the persons were 16,000, of which Lord's tribute was 32%. True or false? If you got it right, maximum of you are getting wrong, and now I'm having doubt in my own questions. Let's see. Let's go ahead. Okay, Jamie is leading indoors, followed by Indore and Eds. Next question, true and false again. Fifth one. We have 18 questions in total. Only Caleb, the son of Jephunneh, and Joshua, the son of God, aspired to see the land. True and false. Okay, 8 of you got correct. That's good. You could identify the wrong statement. It was Joshua, the son of Nun, or Nun, you can call, and that's why it is false. Let's see the scoreboard. Okay, it's still the same. However, MJ is coming up in the podium. We'll go next question. True and false again. Aaron the priest died aged 123 in the 40th year after the children of Israel were come out of the land of Canaan. True and false. Read the question carefully so that we have ample time. Okay, I see. Few of you got it right. It is false because they did not come out of the land of Canaan, but they came out of the land of Egypt. So there was the clue there. So read the next question carefully and answer. Take time. There is time. If you score, you will come up to the podium. Okay, Jamie and Indore and George, I think, on the podium. We'll go to the next question. Seventh one. What is this number related with? 30 and 2000. Women, assets, booty. What is that related with? 30 and 2000. Wide range of answers. So yeah, the woman is the right one answer. 30 and 2000. We'll go to the next. We'll go to the score. We'll see. Okay, still the same. Podium is still the same. However, in the lower order, they're shuffling. We'll go to next question. Eighth question. Noba. What is it actually? Noba is a place, a person and a place, a person or an animal. Okay. Good. Nobody answered an animal. So a person and a place. Correct. 5 of you answered rightly. And the scoreboard has shifted now. We have still more questions to go. You can come up. Zin. What is it related with? Wilderness, king, mountain, river. The word Zin found in the Bible, these section of chapters. What is it related with? Okay, correct. Wilderness is the correct answer. 7 of you gave it right. That's nice. We'll move on. Okay. Jamie is leading in the second, and Kenny has come up in the third place. Let's see. 10th question. Look at the image and answer where you find this in the Bible. Look at the image. There's battle going on. Where do you find it? Yep.
3 people got it right. That is astonishing. The battle was in chapter 31. However, we'll move ahead. Okay, the scoreboards remain same. 11th question. Look at the image and answer where you find this in the Bible. Look at the image carefully. There is a river and one group this side and one person other side. Which chapter? 31, 32, 33. Okay, 7 of you got it right. That's nice. It's in chapter 32. Jamie is on fire now. And the 12th question comes here. Again, the image. Look at the image and answer where you find this. There are tents and people doing something. There are a lot of tents. They keep pitching and camping. Unpitch, then pitch, then camp. Which chapter? Wow, now you got it. Maximum of you got it right. That's nice. And the scoreboard is still the same. Jamie is still on fire. So 13th question, which is the correct spelling? Choose the correct spelling. Okay, nice. Maximum of you gave it right. Okay, BK is coming up. Jamie is still up. Indore and Kenny. Again, which is the correct spelling? This is a hard one, but there is ample time, so take time and identify. Wow, everything looks same. So second one is the right one. 4 of you gave it right. So 4 more questions to go. You still have time to come up. We'll see the scoreboard. It's still the same. Jamie, Indore, Kenny. Let's move ahead. Which is the correct spelling? 15th question. You have ample time, so look at it carefully and answer. Do not hurry. One more answer is left. One more to answer. So the first one is right. Only one person got it right. We'll move and we'll see what happens. Okay. The podium is still the same. You have 3 more questions, and this would be much easier ones. Hopefully, get it right. Why was this command important? On the 7th day, wash your clothes and you'll be clean. Then you may come into the camp. Okay. Look at the options carefully. You have time. On the 7th day, wash your clothes and you'll be clean. Then you may come into the camp. Because they did not take bath for many days and were stinking. Because Moses liked cleanliness and was strict about it. Because they got water to wash their clothes only on the 7th day. Because God's presence was in the camp and to respect His holiness. That's nice. Maximum of you got it right. 2 of you thought that Moses liked cleanliness and he was strict about it.
Okay. Next. Two questions to go. Why is this verse so significant? And said to him, your servant have counted the soldiers under our command, and not one is missing. It shows that the servants were very good in counting, first option. It shows that the officers were highly educated, made no mistakes. It shows that maths is a very important subject. It signifies that God protects his people, he fought the battle for them, which is the correct answer. Wow, all of you answered, most of you gave correct. That's nice. God fights our battle, and that's why no one was killed on the battle. Okay, so there is one last question, and there may be shifting in the podium. You can try your best. Last question. What can we learn from this verse? Last one. Moses said to the Gadites and Reubenites, shall your countrymen go to war while you sit here? First option, that sometimes we can choose to sit and watch like an audience. Second option, that the Gadites and Reubenites were scared to go to war. Third one, that Moses was expert in scolding. Last one, no place for lazy attitude is contagious and unacceptable. Okay, some of you got it right. Two thought that we could watch and sit and relax. Four of you thought that they were scared to go to war. Nevertheless, most of you have given the right answer. Let's take the podium now. Okay. Okay. Gil has come up. Indore second. And first is Jamie. Congratulations to all three of you. And thank you all for actively participating. And runners-up were there, first position, Maria Panancia. Thank you for participating. Once again, I would like to thank Mr. Sunny for conducting the Bible quiz and those who were the participants. At this time, we will hear a special song by Kenneth Samuel Tudu. Good evening, everybody, and happy Sabbath. The song which I'm going to sing is Whom Shall I Fear? You hear me when I call. You are my morning song. Though darkness fills the night, it cannot hide the light. Whom shall I fear? You crush the enemy underneath my feet. You are my sword and shield. Though trouble lingers still, whom shall I fear? I know who goes before me. I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. My strength is in your name, for you alone can save. You will deliver me. Yours is the victory. Whom shall I fear? Whom shall I fear? I know who goes before me. I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a
a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. And nothing ever fall again. You hold the whole world in your hand. I'm holding Lord to your promises. You are faithful, you are faithful. Nothing formed against me shall stand. You hold the whole world in your hand. I'm holding on to your promises. You are faithful, you are faithful, you are faithful. I know who goes before me, I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. I know who goes before me, I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. Whom shall I fear? Whom shall I fear? Whom shall I fear? The God of angel armies is always by my side. Thank you, everybody. Thank you, Kenneth, for your beautiful song. At this time, we will hear a message by Mr. Saurav Marshall Kisku. Once again आप सबों को शुभ संध्या और हैप्पी साबत। मेरा नाम सौरभ मार्शल किस्कू है और मुझे ये मौका मिला है कि मैं आज का संवाद आपके सामने ला सकता हूँ। I want to thank God for this privilege, for giving me this wonderful opportunity where I could take up the Vespers today. आज का जो मेरा सरमन है वो मिला जुला है। आज अगर हमारे बीच में बच्चे हैं, क्या आप हाँ बोल करके क्या मुझे आप संकेत कर सकते हैं? Can you say yes, I am here? It is especially for you as well as for the adults also. For the children, are there any children between us? Oh, okay, no problem. So this is for the adults, we'll see. No problem. So before we go into our sermon, I want you to tell me, I want you to please respond whenever I ask you question. Okay, there are the very simple questions. बहुत ही सरल questions है आपके लिए, जो आप मुझे आप बोल सकते हैं। अगर आप जानते हैं वो आंसर, तो आप कृपया करके हाँ या फिर ना, या फिर अगर आप जानते हैं वो आंसर तो आप प्लीज़ आंसर कीजिएगा, तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा। और लेट्स मेक इट थोड़ा एंगेजिंग, इसको रखेंगे थोड़ा, ताकि हम सब मिल करके ये सभा को चला सकें। और आगे बढ़ने से पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करूँगा। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर सबत दिन के लिए कि हम इस जगह आ सकते हैं आपके चरणों तले। इस सबत दिन में जब हम आपकी उपासना कर सकते हैं खुले में, और एक
आज़ादी में परमेश्वर बहुत लोग नहीं कर सकते हैं, बहुत देशों में परमेश्वर ये बहुत नियम लागू है परमेश्वर पर। हम हमारा सौभाग्य कि हम आ सकते हैं परमेश्वर और हर साबत आपके चरणों तले आ सकते हैं परमेश्वर। आज का सरमन हम जब जाएंगे तो आप कृपया हमारे बीच में आए और हमारी जितनी भी हमारी सोच है, गलत सोच विचार हमारे बीच में वो कृपया करके हटा दे, ताकि हम सच्चाई की और हम अपने अपने कदम रखें और हम सही चीज़ अपने जीवन में हम अपनाने सके परमेश्वर। जब मैं सरमन बोलता हूँ परमेश्वर, मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ परमेश्वर। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे द्वारा इस सरमन को आप ले, जो सच्चाई है आप आपके चेलों को आप सुनाए। इस छोटी सी प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुना और ग्रहण करें, आमीन। जब मैं कॉलेज में था, मैं एक्सपर्ट हूँ मेरे कॉलेज का एक्सपीरियंस शेयर करने में। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला है मेरे कॉलेज में, तो मैं हर समय मेरे कॉलेज का एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ। और मेरे को बहुत हेल्प मिला है जब मैं पुणे गया था। मैं प्रीति दीदी के घर पे था, मैं जब फर्स्ट टाइम मैं गया था, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेट नाइट उनके जगह मैं रुका था, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और परिवार वाले जो मेरे को सहायक किए। और जब मैं कॉलेज में था, जब ऐसे समय था मेरा कि मुझे खाली समय मिलता था, बहुत खाली समय मिलता था, तो मैं कभी कभी मैं आयुका चला जाता था। आप बहुत कोई जानते होंगे आयुका, जहाँ पर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिसिस्ट का रिसर्च किया जाता है। वो पुणे यूनिवर्सिटी में है। अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी के पीछे के द्वार से आप घुसेंगे, जब आप अंबेडकर चौक, अगर आप पुणे में रहते हो तो अगर थ्रू स्पाइसर मेन गेट आप थ्रू सीधा जाएंगे, निकल करके आप अगर लेफ्ट साइड जाते हैं तो वहाँ का पीछे का द्वार मिलता है, तो आप सीधा जाएंगे तो आपको आयुका मिलता है। ज़्यादा आपको मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर गार्ड्स मिलेंगे वहाँ पर तो आप पूछ सकते हैं कि आयुका कहाँ पर है, तो आपको वो लोग बता देंगे कि आयुका कहाँ पर है। तो हर साल आयुका में 28 फरवरी, अगर आप जानते हैं ये डेट क्या है, वो नेशनल साइंस डे पालन किया जाता है ऑल ओवर इंडिया। हर साल एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है पुणे यूनिवर्सिटी में, और लोग हर एक यूनिवर्सिटी दूर दूर से आते हैं, अलग अलग विभिन्न स्टेट से आते हैं लोग पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हर एक डिपार्टमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस और अलग अलग विभिन्न कल्चरल डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत अच्छा रहता है। मैं तो मिस नहीं करता था, क्योंकि बहुत कुछ सीखने मिलता है। मैं जब भी जाता था वहाँ पर तो बहुत कुछ देखने को मिलता था, स्पेशली साइंस डिपार्टमेंट में, क्योंकि वहाँ पर आप देखते थे मॉडल, रियल मॉडल कैसा इंडियन एस्ट्रोनॉट, इंडियन स्पेस रिसर्च ISRO कैसा कैसा बनाते हैं मॉडल, रॉकेट्स के, सैटेलाइट्स के, फिर नासा के कितने मॉडल्स हैं। आप लाइव प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास समय हो तो अगले साल 2022 में 28 फरवरी आप जा सकते हैं। और वहाँ का सबसे बहुत ही दिलचस्प समय है रात का समय, जो कि मैं कतई मिस नहीं करना चाहता था, जो कि है आप तारों को देख सकते थे। मुझे तारों को देखना बहुत पसंद है। जब मैं 8वीं क्लास में 8वीं या फिर 6ठी क्लास में था, तब मुझे मेरी दादी ने मुझे कलकत्ता लेके गया था। तो मुझे ऐसे घूमने गया था, तो मुझे बिरला प्लानिटेरियम लेके गया था, और मैं इतना खुश हो गया था उस जगह में जा करके, मैं नहीं बोल सकता कि मुझे टेलीस्कोप उसी जगह मेरे को खरीदना था। पर उस समय उतना पैसे नहीं थे हमारे पास कि मैं टेलीस्कोप खरीद सकूं। पर मैं एक सीडी खरीदी, 100 रुपया का सीडी था, तो मैं उसको रिपीट में देखता था। वैसे तो कोई वॉइस ओवर नहीं था वो सीडी में, पर मैं उसी को मैं देख करके बहुत खुश होता था। रिपीट में उसको देखता था, DVD में प्ले करता था। मेरे घर में बोलते थे कि क्या तुम देखते हो ये चीज, इसमें कोई वॉइस ओवर भी नहीं है, सिर्फ लिखा रहता है। पर मुझे बहुत दिलचस्प लगता था ये चीज। और आई थिंक हमारे बीच में बहुत ऐसे लोग हैं जो जिसे आकाश मंडल,
आप लोगों को पसंद होता होगा अंतरिक्ष में, स्पेस में देखना, स्पेस देखना। और मैं आपसे यही प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं कि हम क्या जानते हैं स्पेस के बारे में आज के तौर पे, आज के समय पे हम क्या जानना चाहते हैं। तो ये मेरा पहला सवाल है आपके लिए, हम क्या जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो कृपया करके प्लीज कुछ भी कह सकते हैं, गलत सही कोई मतलब नहीं उसका, हम सही कर लेंगे। अगर हमारे बीच में एक्सपर्ट है तो प्लीज हमारी हेल्प कीजिएगा। हम क्या जानते हैं आज हमारे आकाश मंडल और अपने स्पेस के बारे में। हमारे अंकल बोल रहे हैं ब्लैक होल, ब्लैक होल जानते हैं, वो जानते हैं ब्लैक होल जानते हैं। बहुत बहुत अच्छी जवाब है। हम जानते हैं कि स्पेस में ब्लैक होल है। और क्या जानते हैं हम? ओरायन जानते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स जानते हैं, कॉन्स्टेलेशन जानते हैं, और क्या जानते हैं? मिल्की वे, The Great Dipper and the ग्रेट Lesser डिपर। फिर से क्या आप रिपीट कर सकते हैं अपने आंसर को? ग्रेट डिपर वो है Great- सॉसपेन का शेप में है, अपसाइड डाउन सॉसपेन। एक क्लियर स्काई में जो ओरायन जब दिखता है उसका ऑपोजिट में ग्रेट डिपर दिखता है। यस यस, वेरी वेरी नाइस। और थोड़ा हम बेसिक में जाएंगे, बहुत थोड़ा डीप में हम चले जा रहे हैं। बच्चों के लिए अगर हो हमारे बीच में तो मिल्की वे, मिल्की वे, जिसे हम आकाश गंगा भी कहते हैं, शूटिंग स्टार्स, मून और सन, प्लैनेट्स। हमारा 8 प्लैनेट्स, क्या आप बोल सकते हैं हमारे प्लैनेट्स के नाम? अर्थ, स्टार्टिंग फ्रॉम द मर्क्यूरी से Venus, वीनस, नेक्स्ट Earth, वेरी गुड, Mars, मार्स, Jupiter, जुपिटर, Saturn, सैटर्न, Uranus, यूरेनस, Neptune, वेरी गुड। और जो हमारा 2009 में डिसकंटिन्यू किया गया हमारा एक प्लैनेट जिसका नाम है Pluto. प्लूटो। और भी है जो अलग अलग, पर उसको अभी तक हम रिकॉग्नाइज किए हैं पर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किए। तो हम जानेंगे द डे द यूनिवर्स चेंज्ड फॉरएवर। हम जानते हैं ये बात है 1609 की बात है। आप देख सकते हैं यूरोप का मैप है, इटली एक देश है जो कि बहुत ही फेमस देश है। हम जानते हैं बहुत किस्म चीज के द्वारा हम इटली को जानते हैं। 1609, आज से ऑलमोस्ट 500 साल पहले 1609 की बात है, जब गैलीलियो वो पाडुआ का यूनिवर्सिटी में, जहां पर पाडुआ यूनिवर्सिटी है वहां पर वो रह रहा था। तो उसने एक इन्वेंटर के बारे सुना, नेदरलैंड, जिसका नाम है हांस लिपर है। वो एक डिस्कवर किया एक चीज का, जिससे आप दूर की चीज आप सामने करके देख सकते हो। तो ये चीज देख करके गैलीलियो जो था वो थोड़ा स्केप्टिकल था, उलझन में था कि ऐसा भी चीज हो सकता है क्या कभी, कि हम दूर का चीज सामने देख सकते हैं। तो उसने अपना रिसर्च स्टार्ट किया। जब वो रिसर्च स्टार्ट किया तो उसने देखा कि जब वो रिसर्च स्टार्ट किया तो उसने देखा कि हाँ, एक वो अपना ये चीज का ऊपर वो रिसर्च करके एक अपना खुद का अपना एक टेलीस्कोप बनाया। टेलीस्कोप जो कि 9 गुना बेटर था वो हांस लिपर है के बनाया हुआ। और ये चीज जो बनाया गया था वो मिलिट्री यूज में किया जा सकता था, प्लस कमर्शियल यूज में भी किया जा सकता था। और जब ये तो बस ये शुरुआत थी हमारा टेलीस्कोप का। पर उसी साल 1609 का साल का दिसंबर का महीना था जब पहली बार गैलीलियो अपना टेलीस्कोप को चांद की ओर वो
मोड़ा। और ये चीज जब वो मोड़ा तो एक एरिस्टोटल हमारा एक फिलोसोफर है जो कि कहता है कि हेवन एक बहुत ही परफेक्ट जगह है और और जो हमारा पृथ्वी है वो इम्परफेक्ट अपूर्ण जगह है। हाँ, और ये अब देख सकते हैं बहुत साल पहले की बात है जब अरिस्टोटल ये चीज कहा गया था। ये चीज वो कहा गया था। ये अरिस्टोटल का हेवंस का मतलब है वो आकाश मंडल को वो रेफर करते थे। तो वो कहता था कि चांद वो एक बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही स्मूथ सरफेस है, उसमें कोई ये नहीं, उसमें कोई ऐसा चीज नहीं है कि उसमें कुछ गड्ढा वड्ढा कुछ नहीं है वैसा, उसमें बहुत स्मूथ सरफेस है। पर जब गैलीलियो ने वो देखा, उसे सोचने में मजबूर हो गया, वो सोचने में ऐसा मजबूर हो गया कि वो एरिस्टोटल के ऊपर विश्वास करे कि वो खुद का जो वो देखा है वो उस पर वो विश्वास करे ऐसा, क्योंकि वो ग्रीक था और जो नॉलेज था ग्रीक का उस समय पे बहुत ही प्रचंड था उस समय पे। तो जब वो देखा तो वो चांद पे देखा, अलग अलग पहाड़ देखे, क्रेटर्स देखे, गड्ढे देखे। तो आप देख सकते हैं हमारे फेमस साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स इरास्टोथेनेस, फिर अपिनियस, फिर माउंट हार्डली, फिर कॉकसस माउंटेन, प्लेटो, फिर मेरे इसके अलग अलग नाम दिए गए जब रिसर्च किया गया। तो जब ये चीज जब पहली बार जब गैलीलियो देखा, ये बहुत हमारा जो सोचने का तरीका था हमारा स्पेस के और जब हम सोचते थे कि स्पेस बस शायद से लिमिटेड होगा। 1609 की बात है ये चीज, जब सब कुछ लिमिटेड था। हम जानते हैं किसका रूल था, हम जानते हैं पहले से, जो हमें लिमिट करता था सोचने में। पर जब ये चीज जब गैलीलियो और अलग अलग फिलोसोफर्स, जब ये साइंटिस्ट इन्वेंटर्स जब ये सब चीज खोजने चालू किए, तब ये चीज वो लोग को देख करके बहुत बहुत अचंभ हुआ, बहुत थोड़ा अचंभ हुआ वो लोगों को। और वो लोगों को सोचने में ये चीज मजबूर होना पड़ा कि जो हम सोचते हैं अंतरिक्ष के बारे में, ये चीज बस लिमिटेड नहीं है, बहुत बड़ी है हमारे अंतरिक्ष। तो वैसे ही हम देख सकते हैं कि हमारे चांद में ऐसा गड्ढा पाया जा सकता है। अगर आप फोटो देखना चाहते हैं चांद के बारे में, आप नासा या फिर ISRO के वेबसाइट में जा सकते हैं और आप पा सकते हैं ऐसा फोटोज। फिर उसने देखा आकाश गंगा उसने देखा, जिसे हम मिल्की वे भी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में आकाश गंगा भी कहते हैं। तो उसने जब ये चीज देखा, वो लोग वो तो बहुत वो सोचने में फिर से मजबूर हो गया ये चीज देख करके। फिर उसने देखा जुपिटर को, जुपिटर जब वो देख रहा था उस समय पे जुपिटर, तो उसको जुपिटर के चारों ओर तीन चांद दिखाई दिए। सिर्फ तीन चांद नहीं, पर अभी जब हम रिसर्च के बाद देखते हैं, इतने साल के बाद रिसर्च के बाद देखते हैं, तो हमें ऑलमोस्ट 79 हमें मून जुपिटर के चारों ओर हमें दिखती है। ये तो बस सिर्फ आउटर मून ऑफ जुपिटर दिखाया गया फोटो में, पर अगर आप देखेंगे अलग अलग जो जुपिटर के तारे हैं, वैसे उसी समय 100 साल पहले की बात है, 1500 के समय जब मार्टिन लूथर अपना डॉक्ट्रिन्स लिख रहा था, उसी समय निकोलस कॉपरनिकस उसने और एक चीज खोज की। क्या बहुत ही फेमस चीज है, क्या आप कह सकते, क्या बोल सकते इसके बारे में? फोटो दिया गया है, अगर आप इसको जानते हैं तो। रोटेशन और रेवोल्यूशन। उसने ये साबित किया कि सूरज बीच में है और सूरज के चारों ओर ये घूम रहे, हमारे जो बाकी प्लैनेट्स है सब उसके चारों ओर घूम रहे। पर हमारा जो उस समय के जो रूलर्स थे, आप जानते हैं उनको, वो लोग ने एक्सेप्ट नहीं किया ये चीज को। उसने लिखा था, उसका रिसर्च था, ये चीज उसको हटाने बोला, ये चीज कि तुम हटा दो। पर निकोलस कॉपरनिकस एक पॉलिश प्रीस्ट एक पादरी था
जिसने बाइबल पढ़कर ये चीज उसने साबित किया और उसने अपने विश्वास पर वो डटा रहा। और आज हम जानते हैं कि हमारा अर्थ सूरज के चारों ओर घूमता है और हम यहाँ पर हमारा थ्योरी आता है जियोसेंट्रिक और हीलियोसेंट्रिक। हमारा आज का जो प्रेजेंटेशन है छोटी सी थी, ये तो बस स्टार्टिंग थी हमारी प्रेजेंटेशन की। हम आगे बढ़ते हमारे आज की कहानी पर। हमारा कहानी स्टार्ट होता है हमारा 1850 की और समय स्टार्ट होता है, जब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं अभी के समय पे कि अमेरिका जो देश, इतना बड़ा देश है, वन ऑफ द बिगेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री जिसको हम लेबल करते हैं, वो गुलाम रखता था। हम विश्वास नहीं कर सकते हैं कि बस 100 साल पहले की ही बात है जब कि अमेरिका गुलाम रखता था। और हम ये भी जानते हैं कि जब तक सिविल वार नहीं हुआ ये चीज खत्म नहीं हुआ। जब तक 1861 की बात है जब ये स्टार्ट हुई। अब जानते हैं हमारे सिविल वार कैसा हुआ था। हमारा यूएसए 2 भाग में बढ़ चुका था। एक हमारा नॉर्दर्न स्टेट और सदर्न स्टेट। नॉर्दर्न स्टेट जो इंडस्ट्रियलाइज था बहुत, और सदर्न स्टेट जो लोग एग्रीकल्चर में बिजी थे, वो लोग नहीं छोड़ना चाहते थे अपने एग्रीकल्चर को। और नॉर्दर्न स्टेट जो हमारे वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन जो थे, वो कहते थे कि हमें ये स्लेव बंद करना है। ये चीज जब तक ये बंद नहीं हुआ तब तक अमेरिका स्लेवरी में था। लोग खेत में काम करते थे। वो ऐसा समय था कि जब लोग अगर गलत काम करते थे, वो लोगों को चाबुक मिलता था, वो लोगों को सजा मिलती थी, वो लोगों को बेड़िया में बांध दिया जाता था। और ऐसा समय था कि बहुत ही कठिन का समय था। जो लोग स्लेव्स थे तो बहुत ही खतरनाक समय था वो लोगों के लिए। और उसमें से एक लड़का था जिसका नाम था बुकर। ये कहानी मैंने बहुत पहले पढ़ी थी और मुझे ये कहानी बहुत एनकरेजिंग लगता है। जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो जाती है, मेरे एक एनर्जी आ जाती है मेरे दिल पे, और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये कहानी। बुकर, आप जो जानते हैं बुकर के बारे में आप बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं जानते तो मैं बताने वाला हूँ। बुकर एक छोटा सा लड़का था जब इंडिपेंडेंस वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया था, अमेरिकन सिविल वार जब लड़ा गया था, तभी ही उसका जो कंडीशन था, लिविंग कंडीशन वहां पर बहुत ही खराब था। वो वेस्ट वर्जीनिया का था लड़का और बहुत ही कठिन परिस्थिति में वो बड़ा हुआ था। वो घर की साफ सफाई करता था, वो झाड़ू पोछा लगाता उसकी माँ के साथ, और कुछ खरीदने का सामान होता तो वो खरीदने जाता था। और अगर कुछ भी काम करता था, वो गलत काम करता था, उसको मार पड़ता था, उसको बेड़ियों में बांध दिया जाता था। बहुत ही कठिन परिस्थिति था बुकर का। पर एक दिन ऐसा आया जब अमेरिकन सिविल वार जब लड़ा गया, उसके बाद जब वो लोगों को बुलाया गया, एक बड़े से घर पे बुलाया गया। सफेद लोग, जिसे हम कहते हैं गोरे लोग ने सबको बुलाया और वो लोग कुछ पढ़ रहे थे। बुकर को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे क्या पढ़ा जा रहा था, पर उसकी माँ जो उसके सामने खड़ी थी उसको समझ में आ रहा था। उसने बताया कि अभी से हम आजाद हैं, हमें ऐसा हर रोज काम करना नहीं पड़ेगा जो हम हर रोज खेत में काम करते हैं, हर रोज मजदूरी करते हैं, हर रोज ऐसा हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो बुकर जो वो लोग को आजादी मिला गया, वो लोग को मिला गया, जो वो भी बहुत ही कैसा था कि वो इजी लाइफ नहीं था। अगर आपको आजादी भी दिया जाता, आपको खुद के ऊपर भी आपको अपने पैरों पर भी खड़ा होना पड़ता है, तो ऐसा कंडीशन था। तो वो लोग एक छोटी सी गांव में जिसका नाम है वेस्ट वर्जीनिया, वहां पर वो चले गए। छोटी सी गांव जिसका नाम है मालडेन, वहां पर वो चले जाते हैं और वहां पर वो काम करता था। वहां का सॉल्ट माइंस था, वहां पर वो काम करता था। और वहां पर
ऐसे नहीं थे कि वहाँ पर स्कूल्स वहाँ पर स्कूल्स एस्टैब्लिश था, स्पेशली जो लोग स्लेव में थे, जो लोग बंदियां में थे, जो लोग ऐसे कंडीशन में थे, वो लोगों के लिए कोई स्कूल्स नहीं था। तो वो हर रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे उठ करके वो सॉल्ट माइन में जाता था और वहां पर वो हर रोज काम करता था। वहां पर सुबह 4 बजे से लेके शाम ने दोपहर के 1 बजे तक वो मेहनत करता था। वो हर रोज मेहनत करता था और पैसा कमाता था। और उसके घर में उसकी माँ थी और उसके पापा भी नहीं थे। उसका सौतेला पापा था उसका। वो उसको कहता था कि तुम्हें सिर्फ काम कर रही है। पर ऐसा समय आता है कि जब बुकर को पढ़ाई का दिलचस्पी उसको दिलचस्पी लगता है। उसे पढ़ने तो नहीं आता था, फिर भी वो अपनी माँ को जिद करता है, माँ मुझे प्लीज एक किताब खरीद दो मुझे। तो उसकी माँ ऐसे जैसे तैसे करके 1-2 महीना का पैसे जमा करके एक किताब खरीदी, हम उसके लिए खरीदी। पर वो ऐसा किताब नहीं था जिसमें ढेर सारा फोटोज हो, पर वो एक स्पेलिंग बुक था, वेबस्टर स्पेलिंग बुक था। जब उसे खरीद दिया, उसे कुछ पता भी नहीं था इसके बारे में, उसको अल्फाबेट भी पढ़ना नहीं आता था। उसे डर लगता था कि मैं कैसे अप्रोच करूं, मैं उस किताब को मैं कैसे पढ़ूं वो किताब को, मुझे कुछ आता नहीं था। फिर भी वो अप्रोच करने में, वो वाइट लोगों को अप्रोच करने में वो डरता था, क्योंकि उसका मजाक ना उड़ जाए, उसको फिर से उसको मारना पड़े, उसको फिर से उसे तकलीफ ना हो। इसलिए वो अपने से वो धीरे धीरे वो पढ़ने स्टार्ट करता। वो हर रोज मेहनत करता, जब भी उसको चांस मिलता वो पढ़ाई पर ध्यान देता। आई एम सॉरी, वो पढ़ाई पर वो ध्यान देता था। और वो ऐसा समय आता है कि वो उसके गांव में ऐसा एक लड़का आता है जिसे पढ़ने आता था। पर वो उसे बहुत थोड़ा जेलसी होता है कि यार ये लड़का जानता है पढ़ने के लिए, पर मुझे नहीं आता है, ये तो बहुत कुछ जानता है। तो उसे वो क्या करता है कि अपने पापा को बोलता है कि पापा मुझे भी स्कूल जाना है। पर उसी समय जब वो कहता है तो ऐसे 2 या 3 सप्ताह बाद ही वहां पर अनाउंसमेंट होता है कि वहां पर एक स्कूल खोला जाएगा वहां पर, और ये सबको अटेंड कर सकते हैं। तो ऐसा स्कूल खोला जाता है कि, और वो स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर था। तो और सबको, छोटी लड़कियां, लड़के, माँ बाप, बुजुर्ग लोग, दादाजी, सब कोई पढ़ना चाहते थे। सब कोई एजुकेटेड, अपने आप को एजुकेट करना चाहते थे। जो बूढ़े थे वो लोग मरने से पहले बाइबल पढ़ना चाहते थे। वो लोग ऐसा वो लोगों को इतना सीरियसली एजुकेशन वो लोगों को चाहिए था। पर उसके पापा ने कहा कि नहीं, तुम सॉल्ट माइन में जाओगे और तुम वहीं काम करोगे और पैसा कमा के लेकर आओगे, तेरे को जरूरत नहीं है एजुकेशन का। फिर वो पापा को थोड़ा रिक्वेस्ट करता है, तो उसके पापा बोलते हैं कि एक कंडीशन पे मैं तुम्हें दे सकता हूँ। आई कैन ओनली गिव यू ओनली ऑन वन कंडीशन, यू हैव टू ओनली वर्क फ्रॉम 4 o'clock to 9 o'clock। तुम जाओगे उसके बाद स्कूल में, फिर 1 बजे के बाद से फिर से कंटिन्यू करोगे तुम, तभी तुम कर सकते हो। तो उसने बोला हाँ मैं करूंगा। तो उसने मेहनत अपनी शुरू कर दी। सुबह अर्ली मॉर्निंग वो उठता, वो जाता, और फिर 9 बजे वो क्लास जाता, फिर आता वापस, उसे लंच करके फिर से वो अपना काम में बिजी हो जाता। वैसे ही करता, जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलता वो कभी भी छोड़ता नहीं था, वो ग्रैब करता अपॉर्चुनिटी को। और जब ऐसा चल रहा था, सही चल रहा था, उसके पापा उसको एक बार बोल दिए कि नहीं, तुम अपना पढ़ाई लिखाई बंद कर दो, तुम सिर्फ अभी तुम सॉल्ट माइन में ही काम करो। तो वो देखता था अपने दोस्तों को, वो देखता था कि वो लोग काम कर रहे हैं सॉल्ट माइन में, वो लोग स्कूल जा रहे हैं और वो सॉल्ट माइन में काम कर रहा था। उसको डर भी लगता था कभी कभी कि बहुत खतरनाक जगह है और कभी कभी ब्लास्ट होता था वहां पर। तो बहुत ही किसी किसी को चोट भी आती थी वहां पर। तो उसे बहुत डर लगता था उस सॉल्ट माइन में। तो ऐसा ही गुजरता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि वहां पर 2 कर्मचारी काम कर रहे थे। तो वो लोग को सुनता है कि यहाँ से ऐसे कुछ 500 मील दूर एक जगह है जहाँ पर एक कॉलेज खुला है, नया कॉलेज खुला है, जिसका नाम है हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। तो जब वो सुनता है बुकर जब वो सुनता है इसके बारे में, तो बुकर को बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी ना किसी दिन मैं यहाँ पर जाऊंगा और मैं पढ़ाई करूंगा, किसी दिन मैं जरूर जाऊंगा। तो
2 साल काम करता है, उसको जितना भी उसको पैसा मिलता था वो जमा करता है, पर उसे इतना कम पैसा मिलता था कि जब वो रवाना होता है उस कॉलेज के लिए, उस जगह इंस्टीट्यूशन के लिए, तो उसका सिर्फ जितना भी पैसा है, उसका जो कलेक्टेड पैसा था, सिर्फ उसका ट्रैवल में ही चला जाता है। सिर्फ जब वो पहुंचता है उसके पास सिर्फ 5 सेंट्स ही बचते हैं, 5 सेंट। उससे कितना कम पैसा में वो पहुंचा, बहुत गरीबी में वो पहुंचता है उस जगह पे। तो वहां पर जाके वो अपना खाना पीने के लिए वो एक डॉक में वो काम करता है, बंदरगाह में वो काम करता था, और वो खाना पीने के लिए वो एडजस्ट करता। और एक दिन वो वहां पर ही वो इंस्टीट्यूशन में जाता है, वहां पर पहुंचता है, और इंस्टीट्यूशन में वो अपना कहता है कि मुझे एडमिशन चाहिए। सिर्फ उसके पास सिर्फ 5 ही सेंट्स थे उसके पास, और उसका जो कंडीशन था उसका बहुत ही गंदा था, पुराने कपड़े थे, बहुत ही गंदा कंडीशन था उसका। फिर भी वो एडमिशन के लिए जाता है। तो वहां पर एक लेडी थी, वहां पर रजिस्ट्रार ऑफिस में, वहां पर जो इंस्टीट्यूशन का वहां पर खड़ी थी। वो कहती है कि एक सामने वाला रूम है जहां पर जिसका सफाई का जरूरत है। हम जानते हैं बुकर बहुत ही मेहनती लड़का था। वो क्या करता है, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है, लेता है उस वो चीज, अपॉर्चुनिटी को। वो उस जो गंदा सा रूम था उसको वो 3 बार साफ करता है, इतना अच्छा से साफ करता है कि वो जब लेडी आती है देखने के लिए, वो कपड़ा से वो देखने के लिए चेक करती है, वो देखती है कि इतना साफ किया गया है कि उसे शायद से 1 सप्ताह का जरूरत भी नहीं है साफ करने का। इतना घिस करके वो जगह को साफ किया गया, टेबल, बेंच, विंडो, डोर, सब कुछ को इतना अच्छी तरीके से उसको साफ किया गया है। तो फिर वो अपने आप को रजिस्टर करता है उस यूनिवर्सिटी में, उस इंस्टीट्यूशन में, और वो झाड़ू पोछा का काम स्टार्ट करता है। वो कभी भी उसको कुछ भी काम मिलता था वो काम करता। और जब भी उसको समय मिलता था, उसका पार्ट टाइम उसको समय मिलता था, वो यूज करता उसको पढ़ाई में, उसको, ताकि उसका जो उसका जो एम्बिशन था कि हम अगर इतना दूर आए हैं हम, तो हम कुछ बनकर ही जाएंगे, नहीं तो हम ऐसा हम वापस नहीं जा सकते। इतना दूर हम आए हैं, 500 मील दूर, ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर अपने घर से दूर हम आए हैं, तो हम कुछ ना कुछ बनकर ही जाएंगे। तो वो अपना, जब वो ग्रेजुएट होता है, वो एज अ विलेज अपने गांव में वो टीचर बन करके जाता है। पर जब वो जाता है जब वो इंस्टीट्यूशन में वो रहता था, वो काम करता था, पढ़ाई करता था, उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसको वो देखता था कि जब वो जहां पर सोता था कि वहां पर बिस्तर में बेडशीट मिलता था। तो वो थोड़ा कंफ्यूजन में था कि ये चीज बेडशीट क्या के लिए चीज है। वो कभी ऐसा चीज एक्सपीरियंस भी अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया था कि हम बेडशीट क्या के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कभी उसके ऊपर सोता था, कभी उसको ओढ़ करके सोता था। फिर जब वो धीरे धीरे जब भी वो शुरू किया वो चीज रहने वहां पर, जब वो पढ़ाई करने चालू किया, वो देखने चालू किया, वो चीज उसको समझ में आया कि ये चीज ऐसा ऐसा चीज है, ये चीज ऐसा ऐसा हम इस्तेमाल करते हैं इसको इस तरीका से। उसको वो बहुत मेहनती था। वो सीखा डिग्निटी ऑफ लेबर, वो सीखा डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे सीखा। वो सीखा कि काम करना कोई डिसग्रेस नहीं है, वो एक आशीर्वाद की तरह है, एक ब्लेसिंग की तरह है काम करना। हार्ड वर्क इज नेवर अ डिसग्रेस टू एनीबॉडी, इट इज अ ब्लेसिंग टू एवरीबॉडी। और वो सीखा कि एक दूसरों का मदद हमें करना चाहिए, किसी भी कहीं भी जरूरत होता है, हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी रिलीजन, कास्ट, जेंडर, सेक्स कोई भी आता है, हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है और हमें मदद करना है। क्योंकि ये चीज उसने सीखी, ये चीज सीखी। जब वो वापस जाता है, वो पढ़ाई करता है अपना जब वो ग्रेजुएट होता है, वो एज अ विलेज गांव का एक टीचर की और गांव का एक टीचर की और के तरफ से जाता है और वो वहां पर पढ़ाता है। फिर ऐसा ही समय आता है जब वो इंस्टीट्यूशन उसको बुलाता है, उसके प्रिंसिपल वहां के बुलाते हैं उसके, और बोलते हैं कि क्या तुम फिर से हमारे लिए काम करना चाहोगे। तो वो वापस चले जाता है और उसे वहां के प्रिंसिपल उसको कहता है कि हम तुम्हें एक जगह हम देना चाहते हैं तुम्हें, वहां पर तुम एज अ प्रिंसिपल की और की तरह तुम काम करोगे, जिसका नाम है, वो जगह है एलाबामा में। और
टस्कीगी, अगर मैं सही हूँ उसको ऐसा प्रोनाउंस किया जाता है, कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। टस्कीगी यूनिवर्सिटी अभी जो है अभी, तभी कुछ नहीं था, एक बड़ा सा जमीन था और कुछ नहीं था। तो वो देख करके वो थोड़ा सरप्राइज हो गया था कि ऐसा कैसा हम स्टार्ट करेंगे। तो वो बस छोटा सा झोपड़ी जैसा वो स्टार्ट करता है और सिर्फ 30 लोग करके 30 लोग मिल करके वो लोग स्टार्ट करते हैं। फिलहाल जब वो स्टार्ट करता था तो सिर्फ 1963 में सिर्फ 250 स्टाफ स्टूडेंट थे और अभी विथ 2371 ऐसे कुछ स्टूडेंट थे। पर अभी अब अगर आप देखते हैं टस्कीगी यूनिवर्सिटी, आप अगर आप देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, जो कि स्टार्ट किया गया था बुकर टी वाशिंगटन के द्वारा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसा बुकर टी अपने मेहनत से वो आया, आगे बढ़ के आया और वो अपना काम को, अपने एजुकेशन को वो महत्व दिया। और जब यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड उसको अवार्ड देने गया उसको, तो उसको एक टाइटल दिया गया कि ए वाइज हेल्पर ऑफ हिज रेस, गुड सर्वेंट ऑफ गॉड एंड कंट्री, उसको एक टाइटल दिया गया। हम ये कहानी द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हैं बुकर टी के वाशिंगटन के द्वारा। हम भी हमारे चारों ओर बहुत कुछ ऐसा चीज है कि हम देखते हैं और हमारे दोस्त, हमारे बंधु, हमारे परिवार जो जरूरत वो लोगों को होता है और हम वो लोगों को देख करके नजरअंदाज कर देते हैं। जरूरत होता है हमें, पर हम उसको साइड कर देते हैं। हमें ये चीज हमें याद रखना है, जैसे बुकर टी ने उसने सहायता किया, मदद किया, अपने लोगों को वो सहायता किया पढ़ने में वो लोगों को पढ़ाया, सबको को एजुकेशन वो हेल्प किया और एक यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किया। छोटा सा स्कूल से लेकर के एक यूनिवर्सिटी वो बनाया। हमें भी देखना है कि एजुकेशन कितना हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे रोल में। यहाँ से हम एक छोटी सी 5 पॉइंट का एक हम मॉरल लेसन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि डिग्निटी ऑफ लेबर जो है हमारे बीच में है। हमारे भाई है बीच में, मैं उनको अनुरोध करना चाहूंगा, मैं अर्जी करना चाहूंगा वो कोलोसियंस 3:23 और 24 उसका वो पढ़े। And whatsoever you do, do it heartily, as unto the Lord, and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. हाँ, हमें जो भी करना है हम अपने दिल से करना है और हमें मेहनत से करना है। तो डिग्निटी ऑफ जो हमारा लेबर है, हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम काम में कुछ नहीं है। काम में बहुत कुछ है। अगर हम देखते हैं काम में बहुत कुछ रखा है, हमें बहुत कुछ मिलता है, हम एक्सपीरियंस होते हैं। छोटा से छोटा काम जो हमारा है हम अगर करते हैं, हमें एक्सपीरियंस मिलता है और हम ये एक्सपीरियंस हम दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा किया जा सकता है और आप जान सकते हो, आपके लाइफ हैक्स में आप यूज कर सकते हो ऐसा। और दूसरा हमारा पॉइंट है लेसन्स टू रिमेंबर, हार्ड वर्क इज नेवर अ डिस्ग्रेस। मैं टेडी को कहना चाहता हूँ, फिलिपियंस 2:14 और 15 पढ़े। Do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. हाँ, हमारा जो हार्डवर्क, हम जो मेहनत करते हैं वो कभी भी डिस्ग्रेस नहीं लाता है हमें ठीक है, हम बहुत ही ऐसा समय आता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा दोस्त हमें मजाक उड़ाता है, बहुत ही समय ऐसा होता है, पर जो आप मेहनत कर रहे हो उसका एक ना एक दिन आपको फल मिलने वाला है। आगे हम बढ़ते हैं,
नेवर, हमारा तीसरा हमारा लेसन है हमारा नेवर वेस्ट टाइम। मैं बहन स्टेला है हमारे बीच में, वो एफिशिएंस 5:11 वो पढ़ेगी। And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. थैंक यू वेरी मच। हमें समय दिया गया है, अभी का समय हम जानते हैं, हम ऐसा समय पर हम जी रहे हैं कि हम अंत के समय हैं, और हम अभी हम अपना बाइबल को साइड में रख दे और हम कहे कि नहीं, जरूरत नहीं है अभी पढ़ने का, हम कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, तो हमारा समय निकल जाएगा। हमें समय वेस्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी समय हो, सिर्फ बाइबल पढ़ने के लिए, पर हमारा कुछ भी रेगुलर वर्क हो, हमारा असाइनमेंट हो, बच्चों का असाइनमेंट हो, हमारा कॉलेज का ड्यूटी हो, या फिर हमारा कुछ अगर प्रोफेशनल वर्क हो, अगर हम उसको हम पोस्टपोन करते जाएंगे और अगर हम उसको बोलेंगे कि नहीं हम अभी नहीं करेंगे, हम इस समय नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, तो हमारा ही हानि पहुंचेगा, बाद में ही हमारा लेट होगा और हम ही बाद में तकलीफ में पड़ेंगे। और हमारा चौथा पॉइंट है हमारा चौथा पॉइंट है नो वर्क इज स्मॉल। हम कोई भी काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, एज अ फार्मर, एज अ गार्डनर, एज अ टीचर, एज अ इंजीनियर, एज अ डॉक्टर, एज अ कहीं भी हम काम करते हैं, हमारा कोई भी काम छोटा नहीं होता है। हमारा हर जगह हमारा इम्पोर्टेंट, हमारा महत्व है। अगर हमारा डॉक्टर बोल दे कि मैं नहीं करूंगा, अगर नर्स कह दे कि मैं नहीं उसको उस पेशेंट को नहीं देखूंगा, तो नर्स गुजर सकता है, वो पेशेंट गुजर सकता है। अगर डॉक्टर बोल दे कि मैं उसको ट्रीट नहीं करूंगा, तो वो पेशेंट अनचेक्ड ही रह जाएगा, उसको बाद में तकलीफ हो सकता है। अगर टीचर कह दे कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो वो उसके स्टूडेंट्स वो गवार ही रह जाएंगे। अगर एक फार्मर कह दे कि मैं खेती बाड़ी नहीं करूंगा, तो वो मतलब सब हम भूखे रह जाएंगे। तो हर लोगों का एक जगह है, और हमें ये समझना है कि कोई भी काम छोटा नहीं है। नो वर्क इज स्मॉल। और एजुकेशन हमारा लास्ट है, हमारा आखिरी हमारा पॉइंट है, जो मैं बहन स्टेला को फिर से मैं अर्जी करना चाहता हूँ। प्रोवर्ब्स 1:7 हमारे लिए पढ़ेगी। The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. हाँ, एजुकेशन हमारा जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम नहीं जानते हैं, हम बेवकूफ़ बन जाएंगे। अगर हम बाइबल को नहीं जानेंगे, शैतान हमें पकड़ सकता है, हमें पकड़ लेगा। और हम जानते हैं, हम एग्जैक्टली बाइबल वर्स हम कोट नहीं कर पा रहे हैं, पर आई थिंक फिलिपियंस या फिर एफिशिएंस में कहा गया है, कृपया मुझे अगर आप जानते हैं तो आप मुझे सही करेक्ट कर दीजिएगा, कि शैतान एक गरजता शेर की तरह है, वो तैयार है हमारे लिए कब हम कमज़ोर होते हैं। अगर हम भी पवित्र शास्त्र अगर हम पढ़ने में कमज़ोर हो जाते हैं, हम कमज़ोर हो जाते हैं, तो शैतान हमें पकड़ लेगा। और एजुकेशन हमारा डेली लाइफ के लिए, अगर हम कह दें कि हम नहीं पढ़ेंगे, हम ये चीज़ नहीं जानेंगे, हमारी सोसाइटी के बारे में हम नहीं जानेंगे, तो हम बेवकूफ़ बन जाएंगे लोगों के द्वारा। हमारे जो लॉज है, हमारे जो राइट्स है, हम वो चीज़ को हम नहीं जानेंगे, तो हमें कोई भी आके हमें कुछ भी कह दे सकता है हमें, और हम मान भी लेंगे आराम से। तो एजुकेशन हमारा जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेशनल वर्कर, एजुकेशन कभी भी नहीं रुकता है। हमारा एजुकेशन हमें रोकना नहीं है, कहीं भी हमें ज्ञान मिलता है। एक बहुत ही फेमस मूवी का मुझे याद आती है कि एजुकेशन कहीं भी आता है, आप लपेट लो, कहीं से भी आता है, काम आए, कहीं भी काम आ सकती है एजुकेशन को, आप उसे लपेट लो। और आपको ये जानना है कि एजुकेशन का डिफरेंस भी अभी आपको जानना है, कि सही एजुकेशन क्या है और गलत एजुकेशन का भी क्या है। नहीं तो हम बहुत ही गलत परिस्थिति में गिर सकते हैं, कि हम सही गलत का मतलब भी हम नहीं समझ करके हम अंधाधुन हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें ये चीज़ 5 पॉइंट हमें याद रखना है। डिग्निटी ऑफ लेबर, हार्ड वर्क इज नेवर डिस्ग्रेस बट इट्स अ ब्लेसिंग, नेवर वेस्ट योर टाइम, नो वर्क इज स्मॉल, और हमारा एजुकेशन
ये चीज़ अगर हम अपने जीवन में हम इस्तेमाल रखते हैं ये चीज़ को, तो हमें परमेश्वर हमें ज़रूर हमें हमें एक नया पद देगा और एक नई नई और हमें लेके जाएगा और हमें परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देगा। धन्यवाद। अच्छा, क्लोजिंग सॉन्ग के लिए हम लोग एक गाना गाते हैं। स्पेशल सॉन्ग तो था, पर हम लोग गाएंगे मेरा यीशु मसीह। मेरा यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किया। कभी भेड़ को खिलाए, कभी मुर्दों को जिलाए, और लोगों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किया। कभी भेड़ को खिलाए, कभी मुर्दों को जिलाए, और लोगों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। भीड़ थे 5,000, चेले थे बिल्कुल लाचार, उनको सुझाना था कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, रोटी 5 मछली लाए, यीशु ने भेड़ को खिलाया। जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। अच्छा, क्लोजिंग प्रेयर के लिए प्रदीप टेटे को दिखाई दे रहे हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि तू हमें इस योग्य समझा कि तेरी स्तुति और आराधना में हम समय व्यतीत करने वाले हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस लायक तो हमें बनाया, पूरे 6 दिन तो हमारे साथ रह करके हर एक दुख और तकलीफ और मुसीबत से तो हमें निकाल के लेते आते हुए, स्वस्थ भला चंगा रखते हुए अब तक तो हमारे साथ बने। ये तेरे प्रेम और दया का कारण है। अभी हमने सुंदर वचन तेरे गीतों को गाया, और तेरे बाइबलों से हमने जो क्विज जिन्होंने इन प्रोग्राम को बनाने के लिए उपाय और बुद्धि दिया कि हम आपके बाइबल के जितने भी वचन हैं उनको हम पढ़ने वाले हो और इनसे हम बुद्धि और ज्ञान और अर्जित करने वाले हो सके। और इस प्रकार से तेरी योजना के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। इस बीमारी और दुख और तकलीफ मुसीबत समय में हम जब जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारी परिस्थिति को जानता है, लेकिन तेरे प्रेम और दया में हम जब पाए जाते हैं तो हमें उपाय बुद्धि करता है कि तू हमें भूलता नहीं है प्रभु। तेरी आराधना और स्तुति के लिए हम तेरी आराधनालय में हम नहीं जा सकते हैं, और हम ये ठंडा नहीं, और हमारा जो विश्वास है प्रभु वो कमजोर ना पड़ करके प्रभु और अधिकताई के साथ हम जब आज पूरे देश दुनिया के लोगों के साथ मिल करके दूर दूर जगह से सारे हम एकत्रित हो सकते हैं, ये तेरी ही दया और प्रेम का कारण है और तेरी ही आशीष का कारण है, तेरी बुद्धि का कारण है प्रभु, कि हम इस प्रकार की योजना के द्वारा जो है एकत्रित हो सकते हैं। हर एक छोटे बड़े सबों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम विशेष करके आज के लिए प्रार्थना करते हैं, हम आनंदित और खुशी भी होते हैं, और दुख और तकलीफ हमारे बीच हर एक प्रकार का समय बीता प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं जिनको आज पीटे साहब तूने अपने पास बुला लिया, अंकल को उनके साथ हो, उनके संग रहा इस जगत में हर एक दुख और तकलीफ में। जब हम जितने यहाँ छूट जाते हैं और शोकित होते हैं, ये आनंद और खुशी के समय हम
फिर से जिस दिन तू आएगा प्रभु, उस दिन हम एक साथ में फिर से हम तुझे देखने वाले हो सकेंगे। इसी आशा के साथ अपना मन को हम तसल्ली दे सकें और हताश और निराश ना हो, वरन हम एक निंद्रा अवस्था में हम अ, बाइबल में जब पढ़ते हैं, एक निंद्रा अवस्था में हम अपने आप को समा देते हैं। इसी प्रकार से जितने भी आज बीमार और दुख तकलीफ में हैं, बहुत सारे लोग जितने आज तेरी आराधना और स्तुति नहीं कर सक रहे हैं, एक साथ में एकत्रित नहीं हो सक रहे हैं प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको भी तो आशीष दे, मदद कर कि वे लोग भी तेरी आराधना स्तुति में से समय को व्यतीत करने वाले हैं। जो खोए हुए हैं, अंधकार में हैं, आराधना स्तुति नहीं हो रही बोल करके, और वे लोग आनंदित और खुशी में और दुनियादारी में खोए हुए हैं, उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने भी इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं, हर एक को तू जिस प्रकार से आशीषित करता है पिता, उसी प्रकार हमारे जितने भी परिजन, हमारे जितने भी भाई बंधु, उनको भी तू आशीष मदद कर, ताकि इस प्रोग्राम में फिर से जुड़ करके तेरे आशीष को प्राप्त कर सकें। अभी हमने सृष्टि के विषय में और दुनियादारी के विषय में और दुनिया के लोगों के विषय में, जो अपने आप को एक महान और विद्वान समझते हैं, उनके विषय में मैसेज सुना, उन्हें अगुवाई किया, और इस प्रकार के मैसेज के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी जो भी बातें हमने सुनते हैं सीखते हैं, उन पर तेरे आशीष होते हैं। हम विशेष करके आज के लिए प्रार्थना करते हैं दादा जॉर्ज के लिए, उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज उनका बर्थडे है और वे खास करके आपको इस परिवार में खुशी और आनंदित होकर के हम याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रभु जितने भी आज के दिन और आने वाले समय में अपना जीवन में एक नई उमंग और नई जोश और तेरी महिमा में उनको बढ़ा ले चल, और उनको विशेष तौर से हम समर्पित करते हैं आपके हाथों में। उनके द्वारा आपके कामों को जगत में और भी बहुत आयत से होने पाए, अच्छे तो मदद कर। हर एक बुजुर्ग के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो हमारे बीच हमारे माता पिता, हमारे जितने भी उस कुटुंब परिवार वाले हैं, जो असहाय, कमजोर और अपने आप को कमजोर समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, सबों को तू मदद कर, उनको स्वस्थ और भला चंगा रखते हुए तेरे विश्वास में बढ़ा ले चल, और वे तेरी बातों को जो सुनते हैं सीखते हैं अपने जिंदगी में अपने परिवार में संवारने के लिए, और उनको मदद करके अपने परिवार के जब तक इस जगत में रहते हैं तब तक वे हमें गाइड दे सके, और बाकी जीवन और कल के जब पवित्र दिन हम आराधना स्तुति में समय व्यतीत करते हैं पिता, सबों के संग तू हुआ कर। हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। हम इस सभा को अंत करने के लिए प्रार्थना करेंगे। महान से शक्तिमान अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, तुझको बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमारी रक्षा पूरे हफ्ते भर करके सुंदर साबत के आरंभ में लाया है पिता। अभी जो आगे का दिन भी होगा हमारे साथ हो, हमारे जीवन में हो पिता। अभी तक जो भी दुख तकलीफ और जो कुछ भी हो गया उसके लिए तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने सब चीज से हमें बाहर किया पिता परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं कि अभी जो वचन, इतना सुंदर वचन मार्शल ने दिया पिता, उसमें तेरी आशीष हो और सब उनके जीवन में काम आने सके। और क्या प्रार्थना करेंगे, अभी जो जितने भी बीमार दुखी हैं उनके साथ हो, उनकी भी सुधि ले। दीदी के साथ हो, उसकी हर तरह से रक्षा रखवाली कर पिता। उनके लिए तूने उनकी ग्रैंड डॉटर उनको भेजा, और अभी जो थोड़ा संतावना मिला उसके लिए तुझे बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। अभी जितने को यहाँ पर उपस्थित हैं सबको नाम पर नाम आशीष दे। क्या प्रार्थना करेंगे, आगे जीवन भी हमारे साथ हो, आज रात भर हमारे साथ हो। हम जो भी पाप रात करते हैं पिता उन्हें क्षमा कर, ताकि उन पापों को फिर से ना दोहराने सके। गरीब दुखी बीमार अनाथ उनके साथ भी हो, उनकी भी सुधि ले। और भी जो जितने बीमार दुखी हैं पिता उनके साथ हो, उनकी रक्षा रखवाली कर। और हमें कल
साबत के दिन में तेरी आराधना करने दे और हम फिर से नया दिन देखने सके। पिता परमेश्वर, जितने भी और भी बीमार हैं उनको भी चंगा कर और शैतान को हमारे ऊपर से हटा। पिता परमेश्वर, इस सुंदर सभा के लिए हम तुझे बहुत धन्यवाद देते हैं। आज रात भर हमारी रक्षा रखवाली कर, अपनी स्वदूत भेजकर हमारी रक्षा रखवाली कर। और क्या प्रार्थना करेंगे, इस छोटी सी विनती इस मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। Believe in the resurrection when Jesus comes again.